Guruvar with Guruji in session. In these sessions, we talk about our rishis, maharshis, and great people. We already talked about Maharshi Kasyap, and today we are going to talk on Maharshi Bharadwaj. So, before I start Bharadwaj Rishi, I would like to end up the story of Rishi Kashyap. So, as earlier I talked about the Rishi story, in which they have the Rishi has many sons and daughters, and the beautiful story of uh, his basically Garuda and Naga. If you remember, I talked about that Garuda and Naga. Garuda is the eagle, Nag is the snake, and we discussed on it. Uh, now, before I go further, I would like to talk on it. Wait. Uh, can you see the... Yes, Guruji. Yeah, okay. Okay. So I talked about something, the fight between Dev and Danav. In Garud Puran, we have referenced of many son of uh, the Rishi Kashyap, and especially there is a war between the Garud and the Nagas. And also in Samudra Manthan, the churning of the ocean, also there is a lot of stories of Rishi Kashyap and his sons. In Vishnu Puran also there is a lot of concept of. And last I ended with the story where I told you how the Kadru and Vinta story. And I ask you to, if you write down what is the meaning of Vinta and Kadru, how the son of Vinta, Garud, and the son of Kadru, the Nagas, are related with it. So I'll continue this because in further stories also these stories will come. The Garud, the Vinta, the Kadru, these story will come in further stories of rishis. So I will keep asking why, what is the meaning of this uh, Kadru and Vinta story. Before that, I would like to talk on Bharadwaj Rishi, Rishi Bharadwaj. Rishi Bharadwaj is the one of the great sages. He is among the 7 sages, rishis, who are responsible for preaching the world with the teaching of Vedas. Bharadwaj was a great seer and an enlightened man who attended extraordinary scholarship and the power of meditation. And do you know who is the Bharadwaj? If I ask with uh, my Indian friends, he is the son of Vrihaspati, Devguru Vrihaspati. And Devguru Vrihaspati is the son of Angiras, Rishi Angira, who is the son of the Brahma. So Brahma, his son Angira Rishi, Angira Rishi's son Vrihaspati, and Vrihaspati's son is Bharadwaj. So it is believed that the Bharadwaj is like abandoned as a baby. Their mother and father live it, and then the Marutas, they adopted, and later on King Bharat adopted the Bharadwaj Rishi. Young Bharadwaj has an insatiable desire to learn. He spent all his time
to understand the Vedas, and he taught whole world the basics of Veda in very different way. Now, you see, when I talk about the Rishi Kashyap, the Rishi Kashyap who developed the different creatures, and Rishi Bharadwaj developed different cults in India. These cults are those who are a fighter, they become Kshatriyas. So the first teaching, because Rishi Bharadwaj is supposed to be a warrior Brahmin, and he wrote how to war. He taught many people, even the Vishwamitra, even the Rama, Lord Rama, even the Vasist. He taught the teaching of war to all of them. Not only that, you will surprised to know the Guru Drona, who is the teacher of Kaurav and Pandavas. The Guru Drona is the son of Bharadwaj. Bharadwaj is the son of Bharadwaj. So he learned his knowledge from Indra. He learned his knowledge from the Brahma and of course the Brihaspati. So Bharadwaj observed a rigorous austerity for years, which result in a weakening of his body. Eventually, he has become so weak that he could hardly sit. The Marut gods were filled with the pity for him. Finally, Bharadwaj fell down in the meditating when God Indra appeared. Bharadwaj was filled with joy. Indra asked him what he do if he were given a longer life. Bharadwaj replied that he would again perform meditation and learn more about Vedas. So Indra told Bharadwaj that in his third life, he spent his 2 lives in understanding Vedas. Indra then materialized 3 mountains and took 3 handful of soil from the mountains. He said to Bharadwaj that 3 Vedas are like the 3 mountains, and what Bharadwaj will learn is equal to the 3 handful. But he did not mean to learn a little. Even he had gained more knowledge than the gods. The Vedic knowledge was endless, and gaining the knowledge is important, but spreading is equally important. Lord Indra then advised Bharadwaj to pray the Trinity God, Shiva, so that he could perform the yajna. And he was equivalent mastering in the Vedas. When Bharadwaj approached Kailasha about the Lord Shiva, he was busy in divine dance with the goddess Parvati. Parvati could see the says, but the goddess simply smiled. Bharadwaj has a wait for several days, and when he attacked by paralysis and collapsed, Shiva and Parvati noticed this, immediately revived him to consciousness and showered him blessings. Then onwards, Bharadwaj decided to spread the Vedic knowledge among the people and try to free from the society from poverty, diseases, and war. He traveled far wide from many kings along the common man, become his disciple. And the most common disciple is known as the Abhay Bharti and Divodas, were the most famous among the kings who famous followers of Bharadwaj. He helped the virtuous king in the time of their peril, using the supreme knowledge and with the help of the gods. Bharadwaj's grace helped achieve a long period of peace and prosperity. The people were happy both physically and spiritually. In his advice, his foster parent, King Bharat, arranged a yajna and got a son who carried away the heritage of the great dynasty of Bharat called Bharat. Bharat, the country name called Bharat. Bharadwaj married with the Sushila and has son called Garg. You have heard about the Garg Rishi in Mahabharat, very famous, who was well versed in the Vedas and Upanishad. It is said that when Bharadwaj's time came to an end, the celestial gods showered flowers on the couple. Indra came divine chariot to take the pious sages to heaven. The Bharadwaj descendant led with the life of Dharma, preaching the world Vedas, teaching art of welfare of the people, and also teaching the art of administration and lifestyle.
You have heard about the Chanakya Arthashastra. In Chanakya Arthashastra, Chanakya named 16 times Rishi Bharadwaj. So he was a good preacher of economics, the what you say, Raj Dharma, administration, the art of administration and art of life. The Bharadwaj is also associated with the saving his caught men from torture of Varakshika demon. There is a demon called Varakshika. Demon has 100 sons who has all wicked and avaricious and constantly harass people with their large army. They learned an excellent of preventing themselves in an invisible protective armors. The king Devadas fought them. They entered in the kingdom of Amravati. Amravati is said to be the Swarga. That is, it's said to be where the King Kuber is there. The demonic army entered there, interrupted religious ceremonies, destroyed devils, plundered the properties, and cut the head of people, men there, even women and children could not get rid of them. Divadash army assisted this Amravati's army, but they were losing the battle. They sought shelter in the hermitage of the sage Bharadwaj, but the rishi, who was never angry, denied to give them shelter. He asked the king not to act like the cowards, but to brave enough to win the battle so that their countrymen can be saved. He also asked them to sacrifice their body if needed. Bharadwaj then performed the yajna and asked the favor of the gods. His countrymen finally won the battle and they got saved. So there are many people in India who have Bharadwaj Gotra, who trace the roots in the Rishi Bharadwaj. They are mainly, it is not actually the only Brahmin families. You got the Chatris, the Dalit, the Vaishya, many, we have the cults where the Bharadwaj Gotra is there. So in one side, we can say uh, the Rishi Bharadwaj is actually uh, developed the cults. You know, the very famous book is Viman Shastra. He wrote the Viman Shastra. Nowadays, people just learn who first time came in a mind about the flying in the air. People say Wright brothers. We study in the 15th, 16th century. First time Wright brothers thought about flying in the air. But in Indian history, 3,000 years before, the Rishi Bharadwaj wrote the Vaman Shastra. It is still there in evidence in several libraries in the Viman Shastra, where not only he assumed Viman, he explained the different methods about the architect and engineering of the aeroplane. So that is great about him. So before I go more with the this Mahan Rishi, this great Rishi, I would like to tell you something in Hindi first. मेरे हिंदी दोस्त के लिए, for my Hindi friends, I want to speak things in a Hindi. आप लोग सुने होंगे ऋषि भारद्वाज जो कहाँ तीर्थ प्रयागराज में, तीर्थ प्रयागराज में उस तीर्थ को उन्होंने बसाया। जो आज प्रयागराज इलाहाबाद है, उस पूरे क्षेत्र को ऋषि भारद्वाज ने बसाया। वो वहां के स्थान देवता है, उसी के संस्थापक है। और सतयुग से लेकर के आज तक वो पूरे हमारे मैथोलॉजी में, हमारे पुराणों में छाए थे। वो सिर्फ देवता गुरु बृहस्पति के पुत्र ही नहीं है, वो कुबेर के नाना भी थे। उनकी बेटी से कुबेर और रावण उत्पन्न हुआ था। उनकी बेटी की विश्रवा मुनि से शादी हुई थी, जिससे कुबेर और बाद में रावण पैदा लिया था। कसौतेला भाई था रावण। तो विमान शास्त्र के जनक, जिन्होंने विमान शास्त्र को बनाया, उस भारद्वाज जो महान हमारे ऋषि है, वो कई ज्ञान, जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद के भी प्रणेता ऋषि चरक ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। पूरा का पूरा एक चैप्टर ऋषि भारद्वाज के नाम पे ऋषि चरक ने लिखा। चरक संहिता
के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया। उन्होंने ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र के बाद व्याकरण का सबसे चौथा महान ज्ञानी माना जाता है उनको। और माना जाता है कि उनको ये ज्ञान भृगु ऋषि से भी मिला था। उन्होंने कई गुरु किए, जैसे बृहस्पति, जैसे इंद्र, जैसे भृगु, जैसे इवन वाल्मीकि भी उनके गुरु थे। ऋषि और मंत्रकार के रूप में भारद्वाज बहुत जगह प्रसिद्धि प्राप्त किए। वो त्रिकालदर्शी, महान चिंतक और महान ज्ञानी थे। ऋषि भारद्वाज जी का जन्म एक जब हुआ तो बृहस्पति और अप्सरा ममता से हुआ। इस कहानी में बहुत सारे जो लोगों के, स्कॉलर्स के अलग अलग मत हैं। कुछ स्कॉलर्स ने यहाँ तक कहा है कि वो उनकी अवैध संतान थी, तो जो भी था, पर ये ममता का पुत्र और उसका एक और भाई था कच्छ। कच्छ की कथा तो पुराण में, या हमको लगता है कि आ, हम भारतीयों को सबको पता ही होगा। कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सबको पता होना चाहिए, जैसे कच्छ की कहानी, मैंने कद्रू की कहानी बताई थी, गरुड़ की कहानी बताई थी, वैसे ही कच्छ की कहानी है जो मैं अगली बार बताऊंगा। तो ये कच्छ इसी का भाई था, भारद्वाज का ही भाई था कच्छ। तो अब भारद्वाज जो आयुर्वेद और का ज्ञाता था, इसके अलावा वो अग्नि विद्या का ज्ञाता था। सावित्र अग्नि विद्या का ज्ञान उन्होंने साक्षात ब्रह्मा से पाया था, और इसीलिए वो ये ज्ञान लेकर के पृथ्वी पर आए। और बाद में उनकी पुत्री का, एक पुत्री का विवाह जो अग्निहोत्र से हुआ, याज्ञवल्क्य से हुआ। और याज्ञवल्क्य ने यज्ञ की पूरी एक्सप्लेनेशन पूरे पृथ्वी पर फैलाया। तो शायद इसी कारण भारद्वाज जी को माना जाता है कि वो दीर्घ आयु के, सर्वाधिक आयु को पाने वाले ऋषियों में से एक थे। और ये बात खुद महर्षि चरक ने बताया। चरक ने उनको दिया अपरिमित आयु वाला महर्षि, उनके उनके बारे में बोला। इन भारद्वाज ऋषि के बारे में नॉर्मली हम लोग जानते हैं रामायण से। रामायण में जब भगवान राम जो है वो ऋषि भारद्वाज के यहाँ जाते हैं। अच्छा, जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, जिन लोगों का रामचरितमानस में रुचि है, वो जानते हैं कि रामचरितमानस में 4 एंगल से उनको देखा जाता है, यानी 4 वक्ता और 4 श्रोता है। ठीक है, जैसे काकभूषुंडी है और गरुड़ है ना। उसी तरह से भारद्वाज ऋषि भी उसमें से वन ऑफ द वक्ता है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि में बातचीत हो रही है। ऐसी कथा है कि भारद्वाज को महामुनि याज्ञवल्क्य ने कथा सुनाई है। मानस में क्या है, शिव पार्वती, काकभूषुंडी और गरुड़, और तुलसीदास विद आमजन। ये 4 वक्ता श्रोता का युग्म है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के बीच में जो संवाद है, वो रामचरितमानस का वन ऑफ द बेस है। तो मानस के अनुसार भारद्वाज का आश्रम प्रयाग में था। एक बार पवित्र माघ मास के त्रिवेणी स्नान के लिए सारे महामुनि आए थे, याज्ञवल्क्य भी आए थे, और वो भारद्वाज से मिलने के लिए, जो उनके ससुर हैं, उनसे आए थे। और तुलसी ने भारद्वाज के लिए लिखा है, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। यानी भारद्वाज तपस्वी, निग्रहित और जितेंद्रिय, दया के भंडार, परमार्थ मार्ग के पथिक होकर बड़े चतुर ज्ञानी थे। उन्होंने आश्रम में पधारा और याज्ञवल्क्य मुनि से सुनने की प्रार्थना की। तब याज्ञवल्क्य मुनि उनसे मुस्कुराते हुए कहते हैं, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि हे भारद्वाज, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को जान गया मैं,
तुम राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी कारण तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो तुम बड़े मूढ़ हो। पर कहने का मतलब तुम इतने ज्ञानी होते हुए भी मूढ़ जैसे बन करके मेरे से सवाल पूछ रहे हो। ध्यान रहे, भारद्वाज इतने महान है कि स्वयं रामचंद्र उनका शीश उनके सामने सर झुकाते हैं, पैर छूते हैं। मानस में राम परमेश्वर के रूप है। अतः परमात्मा के उपासक भारद्वाज उनके रहस्यों को जानने के लिए भोले बनकर याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं और परमेश्वर रूप राम का गुणगान सुन करके बहुत सुख पाते हैं। अच्छा, ये तो रामायण में उनकी कहानी हो गई। महाभारत में, महाभारत काल में द्रोण के पिता थे वो। जैसे रामायण काल में फेमस हैं, वैसे ही वो भीष्म के भी गुरु थे, वन ऑफ द गुरु थे। तो सभा पर्व में भारद्वाज को ब्रह्मा की सभा बैठने वाले ऋषियों में एक वर्णित कथा है। भारद्वाज के प्रमुख पात्र द्रोण में इन्हीं के अनियोजित पुत्र थे। इनके पिता बृहस्पति ने उनको आग्नेय अस्त्र दिया था। अब देखो, ये भारद्वाज ऋषि भगवान राम को भी अस्त्र दे रहे हैं और ये अपने पुत्र द्रोण को भी अस्त्र दे रहे हैं। भारद्वाज ने अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। यही नहीं, जो द्रौपदी के पिता द्रुपद थे, जो इनके ही शिष्य थे, द्रोण और द्रुपद दोनों ही भारद्वाज के शिष्य थे। तो वो उनको अस्त्र का ज्ञान दिए थे। तो भारद्वाज अस्त्र का ज्ञान, जो आज की डेट में आप मिसाइल्स कह लो, गन्स कह लो, उसके अद्भुत ज्ञानी थे वो। विमान शास्त्र, आर्किटेक्ट, ये सब में उनका ज्ञान, बहुत इंजीनियरिंग का बहुत गहरा ज्ञान था। तो भारद्वाज जी को प्रयाग का प्रथम वासी माना जाता है, या यूं कहो कि उन्होंने ही प्रयाग को बसाया था। प्रयाग उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी और प्रयाग में आज तक हजारों वर्षों से विद्यादान और वहां पर भारद्वाज आश्रम है। भारद्वाज आश्रम इतना फेमस है कि आज भी वहां मुफ्त संस्कृत की शिक्षा, वैदिक शिक्षा वहां होती है। वैदिक गुरुकुल आज भी प्रयागराज में है। भारद्वाज ने भगवान शिव से आशीर्वाद से प्रयाग के अधिष्ठाता भगवान माधव की परिक्रमा की, जो संसार की पहली परिक्रमा मानी जाती है। भारद्वाज ने विधान किया कि जो इस परिक्रमा को करेगा, उसके पापों का क्षय और पुण्य का उदय होगा। आज भी प्रयाग में इस परिक्रमा के बगैर अनुष्ठान व श्राद्ध आदि फलित नहीं माने जाते। उनके लिखे ग्रंथ बहुत सारे हैं, जैसे आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र, यंत्र सर्वस्व, यंत्र मंत्र, विमान शास्त्र, अनगिनत किताबें हैं उनकी, अभी भी है। अभी भी उनकी लिखी हुई किताबें जीवित है। भारद्वाज की पत्नी का नाम ध्वनि बताया जाता है और उनकी 12 संतान थी। 12 संतान का नाम था ऋषिश्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, शास, सृष्टि, सुनिहोत्र, सप्रथ, सुहोत्र। ये 10 और 2 बेटी थी, रात्रि और कश्या। रात्रि और कश्या। तो पुत्रियों के नाम पे कुछ स्थान में इनकी पुत्री में मैत्रेयी और इलबिला भी मिलता है। अब मैत्रेयी का विवाह मैंने बताया था याज्ञवल्क्य से हुआ, और इल विवाह का विवाह विश्रवा मुनि से हुआ, जिससे कुबेर का जन्म होता है ना, जो यक्षराज बनते हैं। और यक्षराज कुबेर का सौतेला भाई था रावण। तो इस तरह से भारद्वाज के वंशों का खूब विस्तार हुआ। और ये जो इनके जो 10 पुत्र थे, वो भारत में अलग अलग कल्ट बने। कुछ वैश्य हैं, कुछ हम लोग दलितों में उनको गिनते हैं, कुछ क्षत्रियों में गिनते हैं। तो यूं कहें कि भारद्वाज गोत्र से ही, तो जो लोग जातिवाद का हंगामा करते हैं, जो लोग ऊंची नीच जाति की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये सारी जाति भारद्वाज गोत्र से ही उत्पन्न हुआ है। चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप अन्य गोत्रों से भी हो। तो मूल है कला, मूल है कला। भारद्वाज कला के देवता है और उन्होंने अलग अलग कलाओं में अलग अलग लोगों को पारंगित किया और उससे कस्बे बनते गए और उससे कल्ट बनता गया। ये तो
बाद में अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से अनुसूचित जाति और ये जाति पाति कास्ट वास्ट बना करके उसको पॉलिटिकल बना के लड़ा दिया हम सब लोगों को। वरना हम सब भारद्वाज गोत्री है। भारद्वाज ने हम लोगों को कला का ज्ञान दिया और इसीलिए हम उनके सदैव से हम लोग उनके ऋणी हैं। तो भारद्वाज मुनि को हम आगे आने वाले सेशंस में और विस्तार से बताएंगे, उनकी बहुत सारी कहानियां बताएंगे। और तो और उनके और ऋषि कश्यप के संबंधों को बताएंगे, उनके और उनकी गोत्रों की कहानियों को आपके बारे में उनकी कहानियों से जो है वो बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और आज की कुछ प्लानिंग्स बताना चाह रहा हूं कि मैं आपके आने वाले समय के लिए आपके लिए एक योजना लेके आया हूं। वो आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। तो आप जान रहे हैं कि आप लोग दशहरा आने वाला है ना। तो दशहरा के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छी तैयारी करो और दशहरा को बहुत अच्छे से खूब बढ़िया से मनाओ। तो आई वांट टू टेल यू द नवरात्रि इज कमिंग। Not only the Navaratri, the Diwali is coming. These two festivals are coming, and these two festivals are somehow sadhana. It is just not just you celebrate with the goddess, but we do worship. We do some austerity, some mantra and some yantra practices. So this year also we will celebrate the Durga Puja, the Navaratri, and the Pancharatri of Diwali. Diwali has Pancharatri, 5 nights, and Durga Puja has 9 nights. So this will be celebrated nicely. So how we celebrate? We celebrate by uh, varieties of practices of Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati in the form of 9 forms of goddess. प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटी, घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थम likewise that. So we do that. So I programmed as 1.5 hour in the morning in Navratri and 1.5 hour in the evening. So this puja start from 3rd October to 12th October. This time Navratri has 10 days because the Dvitiya, the second day, has 2 days actually. Dvitiya has 2 days. So total we have 10 days in Navratri, and we will celebrate Navratri in 10 days by doing 1.5 hour in the morning puja and 1.5 hour in the evening puja. So what we do in the morning puja? In morning 1.5 hour, we do Nyasa, Navaran Mantra, Siddha Kunjika Stotram, Devi Kavacham with Kali Kavacham, Lakshmi Kavacham, Saraswati Kavacham, Kali Suktam, Lakshmi Suktam, Saraswati Suktam, and then whatever the goddess means, if first day, then Shailaputri, second day, Brahmacharni, like that, we do the mantras and the story, the Path Katha also. The stories of the Durga Shaptashati. In Durga Shaptashati, 13 chapters are there. So I will explain stories day by day in those days. In the evening, 1.5 hour, we will do Matrika Nyas, which is half an hour practice of Nyasa, and Mahishasur Mardani with the Devi Aarti and Kirtan. So that will happen in the evening. So total 3 hours per day, and then 10 days, total 30 hours we'll do in Navratri. But these 30 hours, we need to prepare ourselves. So before this Navratri, I am going to plan 21 days of preparation. 21 days of preparation. In 21 days of preparation, what you do is 1 hour every day.
सुबह 6 से 7, मॉर्निंग 6 to 7, every day from 12th of September to 2nd of October. If you write down the dates, from 12th September to 2nd of October, the 21 days, every day in the morning, 6 to 7, we are going to prepare for the puja. मैं हिंदी में, आई एम स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी में बोल देता हूं। हम लोग 21 दिन का पूर्वाभ्यास करेंगे, जो 12 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक होगा। 1 घंटे की प्रैक्टिस होगी सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, जिसमें कि हम लोग कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ मुद्रा करेंगे, कुछ न्यास करेंगे, मंत्र चैंटिंग विद प्राणायाम, सबीज प्राणायाम करेंगे, और दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक करेंगे। दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक, ये इतने चीज सुबह पूर्वाभ्यास में 21 दिन तक हम लोग करेंगे। 21 दिन तक हम लोग प्राणायाम, सबीज प्राणायाम, मुद्रा, बंद, न्यास इत्यादि इत्यादि करेंगे। और इज गोपिका इज हियर? कैन आई सी गोपिका? Gopika, can you please unmute yourself? So, Hari Om Guruji. Hari Om. Yeah, thank you, Gopika, for coming. Yeah. So, I introduce Gopika here. So, Gopika ji will be there in Purvabhyas of 21 days. And in her guidance, we will do all the practices of, as I said, the pranayama, the mudras, the bandhas, along with the sabij pranayama, means mantra and the in the breathing, in the pranayama, nyasa, and argala, kilak, and kavach. So these things we done in 1 hour. We complete in 1 hour, 6 to 7, from 12th of September to 2nd of October. Please write down. It's okay, Gopika? Yes, Guruji. So, yeah, so me and Gopika together will be there with you, and I request all of you to present there and prepare yourself for Navratri. And Navratri program will start from the 3rd of October. And as I said that, then 1 hour, 1.5 hours in the morning, 6 to 7:30, 1.5 hours in the morning, and 6 to 7:30 in the evening, 1.5 hours in the evening. So it will be like 3 hours per day in the Navratri. That is very clear. If any question you can ask, if you raise, if you not understand, anybody can raise your hand and ask a question. Parna Gupta said, Guruji, 5:30 to 6:30 morning. Well, we can do 5:30 also, no problem. But because there are some other things, the cleansing and other puja is there, because some your self practices are there. Many people do their sumiran, their bhajan, their guru mantras. So 5:30 to 6, you should complete your sumiran and all. So that is for the guru mantra. So that's why I not touch the 5:30 to 6 o'clock. That is for the guru mantra. So you do the sumiran and dhyan at 5:30, but 6 to 7, we focus on Devi Upasana, Divya Upasana. Okay? Any more question? No, thanks. कोई और सवाल पूछना चाहता है या सब समझ गए? सवेरे 5:30 से 6:30। 6 से 7 मैंने कार्यक्रम बताया। जो हम लोग देवी उपासना का कार्यक्रम कर रहे हैं वो 6 से 7 है।
ठीक है? यस 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 निकोल, यू कैन आस्क क्वेश्चन. यस. Hari Om, Guruji. Hari Om, everybody. Guruji, would like an opinion because this time in Brazil, it's 9 p.m. to 10 p.m. Mm-hmm. Usually, I go to bed at 9. So, what do you suggest? Well, you do with the recording, no problem. Okay. Okay. So Thank it you. should be done in the morning. So Okay. the morning is the best time. That's why the most of the sunrise happens nearby 6 o'clock. So that's why I chose the 6 to 7. So nearby this time sunrise is there. So this is Okay. Brahma Muhurt. So that is better if you do in the Yes. morning. Thank you. Thank you. Yeah. कल्पना जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जो भी पूछना चाह रहे हैं प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए. आप अनम्यूट कर लें कल्पना जी. नमस्ते गुरुजी, मैं पूछना नहीं चाहती. अच्छा, मुझे लगा आप अच्छा, मुझे लगा. थैंक यू. थैंक यू. कोई बात नहीं. मैं ठीक है. समझ रही हूँ आप बोल रहे हैं. ठीक है. तो कुल मिला करके हम लोग टोटल ये जो कार्यक्रम है 31 दिन का है, 31 डेज का है और लगभग 31 आवर्स का भी है. सॉरी, 51 आवर्स का है. 51 घंटे का कार्यक्रम है और 31 दिन का कार्यक्रम है. देखो, 21 दिन तो एक एक घंटा और बाकी का जो 10 दिन है वो 3-3 घंटे. तो 30 और 21 हो गया 51. तो एकदम बड़ा प्योर नंबर निकल के आया. सो टोटल 51 आवर्स इज देयर, 31 डेज एंड 51 आवर्स ऑफ द प्रैक्टिस. लेकिन एक और बात, हम आपको यही नहीं छोड़ रहे हम आपको आगे भी ले जा रहे हैं. आगे क्या है? आगे है दिवाली. दिवाली जो है नॉर्मली 5 रात का होता है. धनतेरस होता है, नरक चतुर्दशी होता है, दिवाली होता है, गोवर्धन पूजा होता है और भाई दूज होता है. ये 5 दिन का हम लोग का नॉर्मली दिवाली होता है. लेकिन इस बार दिवाली भी 6 दिन का है. इस बार जो 14 है वो भी 2 बार पड़ रहा है, चतुर्दशी भी 2 दिन है. तो इस बार दिवाली भी 6 दिन है. तो हमने दिवाली के लिए भी एक कार्यक्रम बनाया है. लगे लगे मैं वो भी बता दूं आपको. दिवाली जो है वो आपका 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है. 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दिवाली है, 6 दिन का है. और आप लोग को पिछली बार का याद होगा, मैंने श्री विद्या कराया था, श्री यंत्र साधना कराई थी, राइट? इस बार और घमासान श्री यंत्र की साधना करेंगे, एकदम घमासान घोर साधना करेंगे. और 16 दिन का षोडशी साधना करेंगे पहले, यानी कि दिवाली से पहले षोडशी, 16 दिन की षोडशी साधना करेंगे, जो एक एक घंटा अगेन सुबह 6 से 7. और उसके बाद जो 6 दिन का जो धनतेरस और नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, यम द्वितीया, ये जो होगा ये 3-3 घंटे का होगा. तो 16 दिन एक एक घंटा, 16 से 6 से 7. और जो मेन दिवाली का 6 दिन है वो 3 घंटा, सुबह 1.5 घंटा, शाम का 1.5 घंटा. और उसमें हम एकदम घोर साधना कराएंगे श्री विद्या का, श्री यंत्र का. तो उसमें भी आपको कुल मिलाकर के अगर हम जोड़े घंटों में तो 16 और 18 कितने घंटे हो गए? लगभग 34 घंटे हो गए. यानी दिवाली में 22 दिन और 34 घंटे, 22 दिन और 34 घंटे दिवाली का. और अगर इन टोटल लें दिवाली और दशहरा, क्योंकि एक भी दिन गैप नहीं है, जो हम 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं वो 3 नवंबर तक जा रहा है, एक भी दिन गैप नहीं है. तो हम टोटल बोलें तो हम 53 दिन का कार्यक्रम, 85 घंटे का कार्यक्रम, 53 दिन में 85 घंटे का कार्यक्रम हम लोग 12 तारीख से शुरू करने वाले हैं.
ये महाअभियान है, अनुष्ठान है ये। तो अब इस अनुष्ठान में हम आप लोगों का साथ चाहते हैं। तो आप लोग एक बार लिख के बता दो इस अनुष्ठान में कौन कौन से मेरे साथ में है। So I want to just, if you write down on your chat who are there in this big program of 53 days and 85 hours, because in Diwali Puja we have 22 days and 34 hours, and in Dashera we have 51 hours and 31 days. So I got from Utkarsh, thank you. मनीषा जी भी साथ में हैं, के भी साथ में है, Nicole is also with us, and Jyoti also want to do. So yes, you all really ready? This is a big sadhana. I not allowed to skip any day. Srijna, Saurabh, thank you very much, Saurabh and Srijna. I repeat it. It's like 53 days and 85 hours of Anushthan, and I explained it. We'll do a Ghor sadhana, means 1 hour morning in 21 days and 16 days, and 3 hours, like 1.5 hour in the morning, 1.5 hour evening in 16 days. So that much days we have and hours, and I hope you all learn good worship goddess in different forms. I want Pratik to make a list of people who really want to associate with this अनुष्ठान. मैं प्रतीक जी से आग्रह करता हूं कि इस अनुष्ठान में जो लोग भागीदार होना चाहते हैं उसका आप क्रम बना लें, उसको आप लिख लें। जी गुरुजी। और जो लोग आप लोग सब प्रतीक को बता दें कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए बताइए कि मैं यहाँ पे यज्ञ कराऊंगा। आप लोगों का 10 दिन नवदुर्गा में यज्ञ होगा और 6 दिन आपका दिवाली में यज्ञ होगा। 16 दिन यज्ञ होंगे, आपके नाम से होंगे। तो आपका नाम जाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका नाम और एड्रेस है ना, अगर जो लोग अपना गोत्र लिख सके अपना गोत्र लिख दें, वो लिख करके आप प्रतीक को दे दें। So those who want to associate, they write their name, gotras, and their address to Pratik, so that because we will do 16 days of Havan, 10 days in Navratri, and 6 days in the Diwali. So 16 days of Havan, we need your name, your gotra, and your address. So this will help in the yajna. So I'm really very excited in telling all of these to you. मैं बहुत उत्सुक हूँ आप लोग को ये बताने के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे आप लोग को बताने में बड़ा मजा आ रहा है कि ये जो 50 दिन हम लोग साधना करने वाले हैं, उससे आप लोगों का बड़ा कल्याण होगा। आप लोगों को मनोवांछित फल मिलेगा, माँ का कृपा आप लोग को मिलेगा। The Mother Goddess give you blessings in these worships. So we do all the format of Shastra. We do the puja with the format of Shastriya methodologies. We follow all the niyams. And if you join with us, it will be great to develop your all type of personality, your well-being, your prosperity, health, and everything. So we'll do this. Anyone have any type of question, please can ask. उत्कर्ष जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? उत्कर्ष जी। नहीं सर, अच्छा ठीक है। मैंने ओके कर दिया है सर। हाँ उत्कर्ष जी, धन्यवाद। आप भी हमारे साथ कर रहे हैं साधना, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सभी लोग पूरे परिवार के साथ साधना करें, you with your whole family, and maximum people come and do this sadhana. It is open to all. There is no qualification. There is no something that you cannot do. Everyone one can do. It's open to all. So today
I just finished our session up to here. If you have any question on Kashyap, Bharadwaj or our program, you can ask. और दूसरे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके साधना से संबंधित है, वो आप पूछ ले। हाँ, गुरुदेव एक सवाल था। हाँ। जो अपना नवरात्रि और दशहरे की पूजा होनी है वो सिर्फ नामदानियों के लिए है या बिना नामदानी भी ज्वाइन कर सकते सबके हैं? लिए, सबके लिए, ओपन टू ऑल, नो क्वालिफिकेशन, ओपन टू जी। ऑल। धन्यवाद सर। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग भारद्वाज ऋषि और कश्यप ऋषि? चलो कोई बात नहीं, हम लोग इस, गुरु जी, हाँ जी, नवरात्र में क्या फिजिकली यज्ञ में शामिल हो सकते हैं? हाँ आप शामिल हो सकते हैं, आप यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। मैं यहाँ अभी गाजियाबाद में हूँ, आप गाजियाबाद में मैं करूंगा, और काशी में मेरे पंडित करेंगे। काशी में कुछ पंडित वहां रहेंगे, 11 पंडित होंगे, वो काशी में करेंगे। काशी में मेरा मकान है, वहां पर भी आप अगर नजदीक है वहां जाके कर सकते हैं। और गाजियाबाद में मैं हूँ इस वक्त, तो अगर मैं रहूंगा यहाँ पे तो आप यहाँ मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। या जयपुर में ऐसा कुछ नहीं है? जयपुर में तो अभी मैं हूँ नहीं, जयपुर में तो भी कोई ऐसी प्लान नहीं है जो नवरात्रा में यज्ञ का कुछ नहीं है? हाँ, नवरात्रा में यज्ञ का हवन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी? जयपुर में नहीं है, आपके नाम पे काशी में होगा, लेकिन जयपुर में मैं और मेरे पंडित वहां नहीं है, जयपुर में नहीं है। जी गुरु आप जी। जो नाम और गोत्र देंगे, आपके नाम और गोत्र को रखते हुए काशी में ये पूजा करा दी जाएगी। और सुबह शाम आप ऑनलाइन हमारे सत्र में शामिल हो ही सकते हैं। जी गुरु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? गुरुदेव एक प्रश्न था। हाँ हाँ, कश्यप ऋषि और भारद्वाज ऋषि नाद योग में जो हमारे 108 गुरुओं की परंपरा है, क्या उसमें से सीधे सीधे गुरु हैं? सीधे तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये ब्रह्मा के पुत्र प्रपौत्र सब है, व्याकरणाचार्य है, जो भी आदमी व्याकरणाचार्य होगा इसका मतलब मातृका का उपासक है। मातृका का उपासक होने का मतलब ये है कि वो नादयोगी है। देखो, संस्कृत एक भाषा नहीं है, संस्कृत जो है वो मातृका से निकल के उसमें वर्णों की उपासना होती, वर्णों की पूजा होती। वर्ण मतलब क्या? वर्ण मतलब मातृकाओं का स्पंदन। और ये सब इनके उपासक रहे हैं। जितने भी ऋग्वेदीय ऋषि रहे हैं, सारे के सारे ऋग्वेदीय ऋषि नाद साधना के उपासक रहे हैं। हाँ, उस समय नाद योग ऐसा टर्म नहीं था, लेकिन अगर व्याकरणी है, अगर शब्द के उपासक है, आप वर्ण और मातृका की उपासना कर रहे हैं, तो आप नादयोगी वैसे भी हो जाते हैं। और वैसे भी इतने ऊंचे स्तर के संत, इतने ऊंचे स्तर के ऋषि बगैर नाद साधना के वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते। जी सर। ठीक है, गुरुजी सुबह तो हम 5 से 6:30 जो ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर 6 से 7 कैसे अटेंड करेंगे? देखो कुछ तो आप लोग को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक चूंकि ये है। अनुष्ठान है। तो जो सुमिरन वगैरह है वो 5:30 से 6 तक में कंप्लीट कर लो, और बाकी का जो बिंदु साधना या नाद योग है वो शाम में कर लो, थोड़ा सा आगे पीछे करके। देखो, जब त्योहार होता है तो हम लोग एडजस्ट करते हैं ना, हाँ, आपके मैं घर वही पूछना में। चाह रही हूँ गुरुजी कि हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं हाँ कर सुबह वाले सकते, प्रोग्राम? जी। हाँ आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब आप जैसे आपके घर में कुछ लोग आ जाएंगे तो आप लोग एडजस्ट करते हैं ना, जैसे घर ठीक। में अतिथि आ गए, तो अतिथि के लिए जहां आप सोते थे वहां नहीं सोएंगे, आप और लोगों को जगह देंगे। उसी तरह से जब त्योहार आता है तो हम लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना के लिए उनको स्थान देते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। बाकी समय तो चलता है, लेकिन ये 50 दिन जो है ये थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आप अपने कार्यक्रम में, ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद। हम लोग संडे को फिर मिलेंगे। यदि मैं ना हो पाऊं, मैं ना आ पाऊं, तो मैं प्रतीक से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा कोई प्रीवियस लेक्चर चला दें।
क्योंकि उस वक्त मैं दरभंगा के लेक्चर में रहूंगा। मैं कल उत्तर बिहार उसी यज्ञ के वैज्ञानिक अनुसंधान पर किसी लेक्चर में जा रहा हूँ, सेमिनार में जा रहा हूँ, और मैं 9 तारीख को लौटूंगा। तो यदि बीच में मैं अनुपस्थित रहूं और मेरा क्लास हो तो मैं अनुरोध करता हूं प्रतीक जी इसको मैनेज कर लेंगे। धन्यवाद आप लोग सभी का। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। Thank you very प्रणाम much. गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। Thank you. Bless you, Guruji.